Okay, so in last two lecture, in last two lectures, we have discussed about term symbol, how to calculate term symbol for particular ion or for particular electron present in particular orbitals. So today in this lecture, we will discuss about microstates and degeneracy. How to calculate microstates or degeneracy. Microstate and degeneracy means microstate or degeneracy. Okay, so how to calculate number of microstates and degeneracy. तो किसके लिए calculate? These are calculated for electrons present in the orbit. Orbital के अंदर जो electrons present होते हैं उसके लिए ये होती है. So microstates are n number of arrangement of electrons in orbital. Suppose in p orbital there are two electrons, p1 and p2. There are two electrons in p orbital. So कितने type से we can arrange them in p orbital. Suppose दो इलेक्ट्रॉन है p orbital में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कितने टाइप से कितनी तरह से we can arrange them in orbitals. Orbital में कितनी तरह से fill कर सकते हैं. So that is microstates. Okay, so number of microstates are calculated with this formula n factorial by r factorial into n minus r factorial. So this is the general formula. You have to remember कि number of microstates और degeneracy दोनों के लिए एक ही है. So कैसे आप calculate कर सकते हो? So you have to use this formula for calculating number of microstates. N factorial by r factorial bracket means into n minus r factorial. So what is n and what is r? So examples, we have p3 suppose. यानी p में तो 3 electrons present है p3. So what would be the n with the maximum number of electron occupying p orbital. So we know that in p orbital there are 6 electrons maximum. There may be maximum 6 electrons. कोई भी p orbital है उसमें क्या है px py and pz है. तो each orbital में दो आते हैं, तो 3 into 2 is equal to 6. So p orbital में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आता है maximum. So जो भी इस फॉर्मूला में whatever n is here, n means maximum numbers occupied in the orbital. That orbital. Suppose s orbital है, तो s orbital में maximum electrons कितने होते हैं? 2. So that's why n value for s orbital will be 2. अगर d है तो d में 10 होता है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 10. F है तो 40 like that. And what is the R? R is number of electron available in p orbital. Suppose we are talking about p orbital, that's why I have written here p orbitals. Okay. So R means अभी कितने electron at present है in given orbital. Suppose this is the p3 means p में 3 electron present है, तो R की वैल्यू कितनी होगी? 3. But n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Number of total electrons में occupied in p orbitals. कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 3, 6 और इलेक्ट्रॉन. सो n की वैल्यू हो जाएगी 6, r की वैल्यू हो जाएगी 3. यहाँ पे p3 है तो r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी p3. अब फॉर एग्जांपल p3 है तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है. तो फार्मूला वी विल यूज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6. क्यों होगी? बिकॉज़ p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6. तो 6 फैक्टोरियल बाय 3. 3 क्या है? p3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है p में. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 3 factorial 6 minus 3. Again we have put the value of n and r. So if we solve it, तो ये solve किस तरह से होगा देख लो. 6 factorial लिखा है, इसका मतलब 6 into 5 into उसके बाद जितने भी सब में into में लिखने का. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divide by r factorial मतलब ये 3 है तो 3 into 2 into 1. अब 6 minus 3 कितने होता है? 3. So again we have to write 3 into 2 into 1. अब इसको if you will calculate you will have 20. So answer will be 20. So in case of P3, number of microstates are 20. Okay. So next example देखते हैं अपन. Number of microstates in D5. D5 के लिए अपने we have to calculate number of microstates. So again we will use the formula n factorial by r factorial n minus r factorial. So d electron मतलब d orbital है, that's why n की वैल्यू कितनी होगी? 10. Why? Because d में total number of electrons
कैन बी ऑक्यूपाइड 10, सो 10 ऊपर लिखेंगे अपन, देन 5, क्यों? क्योंकि अपने को पूछा है ओनली, इट इज आस्क्ड दैट D5 पूछा है, तो 5 हो गए इसके r की वैल्यू, n minus r again we have write, and again we have to solve it. If we will solve it, then answer would be 256. So for number of microstep for D5 is 256. It's the very simple. Now suppose ऐसा कोई एग्जांपल है कि वो तो हो गया ऊपर ओनली सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए फॉर्मूला हो गया, ओके। बट अगर एग्जांपल पूछा जाता है कि जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर P1D1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिया होता है तो हाउ डू वी फाइंड आउट माइक्रोस्टेट्स? सो अपने क्या करना, उस केस में दोनों के लिए अलग अलग माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो P1D1 के लिए अपने को फाइंड आउट करने के फॉर्मूले लगेंगे दोनों के लिए सेम, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल इनटू अगेन वही फॉर्मूला, देन वी हैव टू राइट द वैल्यू, put the value into formula. So 6 P1 के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 6 होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें 6, एंड 1 फैक्टोरियल 6 minus 1 फैक्टोरियल। अब b के लिए क्या है, 10 by 1 into 10 minus 1, ओके। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 10, P1 के लिए 6, D1 के लिए 10, दोनों को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और आंसर आ जाता है 60। Another example we can take P1 P1, suppose एग्जांपल अपने पास P1 P1, तो अगेन अपने को वही सेम दोनों के लिए फॉर्मूला लिखना है, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू पुट करनी है, पुट करने के बाद आंसर निकालना है, आंसर के बाद दोनों को यू हैव टू मल्टीप्लाई, और आंसर वुड बी 36। ओके, अब कोई एग्जांपल है, सपोज ऐसा पूछा जाता है आपको, टर्म दी हुई है सपोज 3D, ये कोई टर्म दी है, देन दे विल आस्क कि कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट्स फॉर 3D टर्म। तो ये अपने को पता है, एक सिंबल है एटॉमिक टर्म का 2s+1 बाय 2s+1l, ये टर्म सिंबल है, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ऐसा कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि जस्ट कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट फॉर 3D या 1G और 1s लाइक दैट, टर्म सिंबल दिया हुआ है और आपको पूछा जाता है कि माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना है, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला 2s+1 into 12+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का। और अपने को पता है 2s1 की तो क्या होता है, जो ये दे रखा होता है ऊपर टर्म के ऊपर लेफ्ट हैंड पे, वही 2s+1 होता है, 3 दिया हुआ है, तो 3 वुड बी 2s+1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट और वी हैव टू फाइंड आउट l वैल्यू। सो l वैल्यू अपने को पता है, l की वैल्यू के 0 है, तो s, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, z के लिए 4 होती है। सो इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल देयर इज d, तो l की वैल्यू कितनी होगी, d के लिए 2, सो जस्ट वी विल यूज द 2 for d and we will put the value in formula. So 2l in 2 into 2 plus 1, again after solving this we have 15 microsteps। another example ले लो 1G, सपोज 1G के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगेन अपने को वही यूज करना है, 2s+1 into 12+1। सो 1 2s+1 की वैल्यू ऑलरेडी टर्म में दिया होता है 1, सो 2s+1 की वैल्यू क्या है 1 into 2l, l की वैल्यू क्या होती है g के लिए 4, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी हियर दैट l value for z is 4, so just we have to put in value in formula, 1 into 2 into 4 plus 1 and 1 into 9, then answer is 9। this is the thing। so ये एक बहुत ही simple topic है, and just you have to use the formula and you can calculate the microscope।